एक मिनट वेट करिएगा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Today we have presenters from group number one. Ikra Khalid would start her presentation, and the topic of presentation is structuralism, perhaps. Am I right? जी सर। Right. So over to you, Ikra Khalid. Start your presentation, please. If anybody has any question, you can stop the presenter right in between her presentation and ask your questions. And if it goes well, it's okay. Okay. ओके सर। Assalamu alaikum everyone. I am Ikra Khalid. Today the topic of my presentation is structuralism. In sociology, anthropology, history, philosophy, and linguistics, structuralism is generally a theory of culture and methodology that implies that element of human culture must be understood by way of their relationship to a broader system. Structuralism is order or structure in everything is everything. Structuralism is organized in structural pattern, society, culture, language, even thoughts and behavior. Central to structuralism are binary opposition. Literary texts are composed of a series of signs that make up their hidden logics. And it was originated in the early 90s in the structural linguistics of Ferdinand de Saussure. Subsequently taken up by the Prague Roman Jacobson schools of linguistics. In the late 1950s and early 60s, structural linguistics was challenged by Noam Chomsky and other like theorists. उसके बाद Ferdinand de Saussure, he was born in 1857 and he was died in 1913. He was a Swiss linguistics. Language is not just about the relationship between words and the things. ये कहता है कि लैंग्वेज जो है वो वर्ड्स और थिंग्स के दरमियान इसका रिलेशनशिप नहीं है, बट दे डेजिनेट linguistic signifier. Language is a system of signs rather than a naming process. Each sign has two binary oppositions. हर साइन के दो बाइनरी ऑपोजिशंस होते हैं, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड. जो सिग्निफायर है, द साउंड पैटर्न ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड. In the mind, mental concept is called signified. So yeah, screen. ओके इकरा खालिद, मैं जस्ट स्क्रीन शेयर की है ताकि लोग को जो है वो नजर आता रहे कि जो है कोई प्रेजेंटेशन चल रही है, तो मतलब कोई ना कोई आइडिया वहाँ मैच कर सकता है, तो उससे उनके लिए है. अगर आप अपनी स्क्रीन शेयर करना चाह रही हैं तो मोस्ट वेलकम. मैं अपनी स्क्रीन जो है वो बंद कर देता हूँ. नहीं सर, बस सही आप कर दे शो. राइट. नहीं, मैंने नहीं करना है, प्रेजेंटेशन आप नहीं करनी है, मैं तो सिर्फ वो जो है वो स्क्रीन शेयर कर दी अपनी सिर्फ. आप अपने कब कंटिन्यू करें इसको. ओके. इसके बाद एक सेमियोटिक ट्रायंगल है, उसमें बताया गया है कि एक साइन है, उसमें ऑब्जेक्ट बताया गया है, वो डॉग बनाया गया है, और उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट बताया गया है कि मतलब हमारे माइंड में एक डॉग आता है, पहले उसका इमेज आती है कि ये डॉग है, फिर पता चलता है कि ये बार्क करेगा, और देन उसका कॉन्सेप्ट जो है ये होगा. उसके बाद when somebody says dog, you think of this. Dog is a signifier that provides us with an image of our four-legged friend, which leads to, and then dog being signified, which allows us to establish the connection with our four-legged friend, and then move leads to science, which lets our mind sees the picture of our four-legged friend. Different words can describe the same object or concepts. डिफरेंट वर्ड्स जो हैं वो सेम ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करते हैं. ऑल्टरनेटिवली द सेम वर्ड्स कैन डिस्क्राइब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और कॉन्सेप्ट. फॉर एग्जांपल हम सेम वर्ड मॉल ले लेते हैं, बैट ले लेते हैं, दोनों के टू मीनिंग्स आते हैं.
बैट जो है वो एक हम मतलब खेलने के लिए यूज करते हैं, दूसरा जो है वो बैट एनिमल या बर्ड के लिए यूज करते हैं। उसके बाद hence specific sign does not always have to be used to express a given signifier. Signs are therefore arbitrary. Signs thus their meaning from their relationships. And then sender and receiver. एक्चुअली जो सेंडर है वो इनकोडिंग करता है, रिसीवर जो है वो डिकोडिंग करता है, और जो फिर रिसीवर है वो फीडबैक सेंडर के पास दोबारा भेजता है। तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है। दैट्स इट। नेक्स्ट महिला आपकी है। जी, अस्सलाम वालेकुम respected sir and dear fellows. Myself Shumaila and today my presentation topic role of Roman Jacobson in structuralism. रोमन जैकोब्सन 1896 को पैदा हुए एंड 1982 में इसकी डेथ हुई। The term structuralism was introduced into linguistics by Jacobson in the early days of the linguistic circle of Prague, founded in 1926. रोमन जैकोब्सन ने लिंग्विस्टिक्स में टर्म स्ट्रक्चरलिज्म को इंट्रोड्यूस करवाया लिंग्विस्टिक सर्कल के अर्ली डेज में। स्ट्रक्चरलिज्म को समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या होता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक तरफ ईंटों का एक ढेर है और दूसरी तरफ एक बिल्डिंग है। ईंटों का जो हमारे पास ढेर है उसे हम एक स्ट्रक्चर नहीं कह सकते। वो एक ईंटों के कलेक्शन या ईंटों का मजमुआ तो है, लेकिन एक स्ट्रक्चर नहीं है। उसमें हर एक ईंट जो है वो अपनी आइडेंटिटी रखती है। दूसरी तरफ एक बिल्डिंग है जिसमें डिफरेंट पार्ट्स जो है एक दूसरे से कनेक्ट हैं और कनेक्ट होकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी कि एक बिल्डिंग बनाते हैं। बिल्डिंग में हर पार्ट जो है दूसरे पार्ट एक पार्ट का मीनिंग हम दूसरे पार्ट से में देखते हैं। अगर हम डोर को बिल्डिंग से बाहर निकाल दें तो उसकी अलग कोई मीनिंग नहीं है, कोई सेंस नहीं है। डोर के मीनिंग तभी होंगे जब वो अपने दूसरे पार्ट से कनेक्ट होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सोशल जो है उसने फोकस किया एग्जामिन लैंग्वेज को एग्जामिन करने पे कि लैंग्वेज जो है एक स्टैटिक सिस्टम है ऑफ इंटरकनेक्टेड यूनिट्स का, यानी कि लैंग्वेज यूनिकनेस रखता है। हर स्ट्रक्चर के अपने रूल होते हैं और एक स्ट्रक्चर के रूल जो हैं वो दूसरे स्ट्रक्चर के रूल से डिफरेंट होते हैं। हम किसी भी चीज को आइसोलेशन में अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें उसके स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। सो लैंग्वेज हैज ए स्ट्रक्चर रखती है और जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट यूनिट से मिलकर बना होता है। जो यूनिट्स हैं वो साइन पे बेस करते हैं, इसलिए लैंग्वेज जो है एक सिस्टम ऑफ साइन है। Jacobson's structural linguistics suggests that the identity of a sign is determined by its existence in a state of contrast with other signs that can be either syntagmatic or paradigmatic. Jacobson ने कहा कि हम एक साइन को दूसरे साइन के कंट्रास्ट में आइडेंटिफाई करते हैं। कंट्रास्ट में एक साइन का और जो साइन है साइन में जो इमेज जो थॉट जो मीनिंग ड्राइव होते हैं वो हैं सिग्निफाइड। एक सिग्निफाइड जो है वो डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट मीनिंग को कन्वे करता है। यानी कि हमारे पास एक वर्ड है वर्क, ये क्या है सिग्निफाइड है। इंग्लिश स्पीकिंग जब इस वर्ड वर्क को सुनेंगे तो उनके माइंड में आएगा काम, और जब उर्दू स्पीकिंग इस वर्ड को सुनेगा वर्क को तो उसके माइंड में आएगा पेपर। इसके बाद हम देखते हैं सिंटैग्मेटिक और पैराडिग्मेटिक। सिंटैग्मेटिक जो है स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज कैन बी डिस्कस्ड इन टू काइंड्स, रिलेशनशिप ऑफ द सिंटैग्मेटिक एंड पैराडिग्मेटिक। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंटैग्मेटिक जो है वो सेंटेंसेस आर मेड अप ऑफ अ चेन ऑफ वर्ड्स। सिंटैग्मेटिक रिलेशनशिप लुक्स इनटू चेन ऑफ वर्ड्स व्हिच मेड अप सेंटेंसेस। जो सिंटैग्मेटिक रिलेशनशिप है इसमें वर्ड जो है एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और वो हॉरिजॉन्टल या लीनियर फॉर्म में होते हैं एक सर्टेन ऑर्डर में। फॉर एग्जांपल आई एम अ गुड बॉय
इसमें जो वर्ड्स हैं एक चेन में कनेक्टेड हैं और एक दूसरे से कनेक्ट होके एक सेंटेंस बना रहे हैं। नेक्स्ट है पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप। पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप इन विच रिलेशनशिप elements of sentence which can be substituted for another in a given context. पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप ऑलवेज गोज वर्टिकल इन नेचर। जो पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप है वो वर्टिकल फॉर्म में होता है और इसमें जो सेंटेंस के एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉम लाइक्स मैंगोज। अब हम टॉम की जगह मैरी कर सकते हैं, मैरी लाइक मैंगोज। हम लाइक्स की जगह लव्स, मैरी लव्स मैंगोज, मैरी लव्स बनाना, मैंगो की जगह बनाना कर सकते हैं। इस तरह से हम एक वर्ड की जगह दूसरे वर्ड को चेंज कर सकते हैं, यानी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं गिवन कॉन्टेक्स्ट में। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चरलिज्म और फॉर्मलिज्म। फॉर्मलिज्म जो थ्योरी है वो फोकस करती है टेक्स्ट को डील करती है इंडिपेंडेंटली, यानी कि वो टेक्स्ट के इनहेरेंट फीचर को एनालाइज करती है, एवेलुएट करती है और इंटरप्रेट करती है। और इनहेरेंट फीचर में ना सिर्फ ग्रामर, सिंटैक्स और लिटरेरी डिवाइसेस हैं, बल्कि इसमें सिंबल, इमेजेस और फिगर ऑफ स्पीच भी यूज होते हैं। फॉर्मलिज्म जो थ्योरी है वो लिटरेरी लैंग्वेज पे फोकस करती है, यानी ऐसी लैंग्वेज जिसको रीड करने के बाद रीडर को एस्थेटिक सेंस को रिलीफ मिले, यानी उसे लेयर हासिल हो। उसके बाद स्ट्रक्चरलिज्म जो है स्ट्रक्चरल लिंग्विस्ट जो है वो अटेम्प्ट करते हैं क्लासीफाई ऑल एलिमेंट्स ऑफ द टेक्स्ट एट देयर डिफरेंट लिंग्विस्ट लेवल्स, यानी फोनीम्स, मॉर्फीम्स, लेक्सिकल कैटेगरीज, नॉन फ्रेज, वर्ब फ्रेज एंड सेंटेंस टाइप, इन सारी चीजों को वो क्लासीफाई करते हैं, यानी कि किस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट होकर लैंग्वेज बनाती हैं और किस तरह से इनसे मीनिंग ड्राइव होती है। Formalist approach reduce the importance of a text historical, biographical and cultural context। जो formalist approach है वो टेक्स्ट की historical, biographical और cultural context की जो importance है उसको reduce करती है, यानी वो ये नहीं देखती कि author कौन है टेक्स्ट का, उसकी biographical या social condition क्या है या उसकी importance क्या है। formalist जो है वो इस चीज को negate करते हैं। दूसरी तरफ है structuralism, वो that recognize that the significance of each word within a text is determined by internal as well as external factor, historical, biographical and cultural context। जो structuralism है वो एक टेक्स्ट हिस्टोरिकल, बायोग्राफिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को, इनकी जो इम्पोर्टेंस है उसको इन्वॉल्व करती है, यानी ऑथर कौन है, उसकी पर्सनैलिटी और उसके बायोग्राफिकल और सोशल कंडीशंस क्या हैं, ये इन सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करती है। और जो स्ट्रक्चरलिज्म है वो एक यूनिवर्सल थ्योरी है, वो ऑल ओवर थिंग्स पे अप्लाई होती है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड सर। थैंक यू वेरी मच। जी हुमायमा, वैसे इन लोगों की प्रेजेंटेशन और भी है सर, है हमारी दो। जी 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 कंटिन्यू करें आप। Who is the next presenter? Assalamu alaikum class. Myself Hima Ashraf, and today we will talk about the main tenets of structuralism. जो main tenets of structuralism divided into two basic parts: European structuralism and the North American structuralism. And the first one is the European structuralism. I will talk about the European structuralism. European structuralism has three main tenets. The first one is language has a structure. The second one is language is system of science. The third one, language operates at two levels, law and parole. Now we will discuss. The first one is language has a structure, means language is a structure in which each element interact with each other. And the second one is language is system of signs. We already know language is system of sign. For example, we can say noise is a language only when it express or communicates ideas. मतलब noise जो है वो उस वक्त तक noise ही रहेगा जब तक वो कोई idea या कोई information हमें नहीं देता। For example, एक बंदा है वो अगर चिल्ला रहा है या चीख रहा है तो हम वो कोई आइडिया देगा कि वो किसी पेन में उबतला है, इसकी वजह से उसे कोई उसका जो नॉइज है वो उसकी पेन का आइडिया जो है हमें कोई एक्सप्रेशन हमें या कोई कम्युनिकेशन जो कम्युनिकेट कर रहा है उसकी पेन को। नेक्स्ट है साइन जो है वो टू यूनिट से मिलके बना है। द फर्स्ट वन द सिग्निफाइड एंड द सेकेंड वन द सिग्निफायर। द साइन जो है वो हमारा एक्चुअल वर्ड होता है और द सिग्निफायर है वो साउंड होती है। लाइक जो हमारा जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो हम लिखते हैं वो जैसे का साउंड है, ए साउंड है, रा, और ये कार की मतलब साउंड है, ये फिजिकल डायमेंशन है लैंग्वेज की।
तो ये हमारा जो साउंड होगी वर्ड की वो हमारा सिग्निफायर होगा, और जो उसका हमारा कंसेप्ट होगा उसके बाद हमारे माइंड में जो इमेज बनेगा उस वर्ड को सुनने के बाद वो हमारा सिग्निफाइड होगा, यानी कि जो हमारा कंसेप्ट होगा वो हमारा सिग्निफाइड होगा। The third and the last one, language operates at two levels, law and parole. And the law is the abstract system, the set of rules। मतलब लॉ जो है इसमें रूल्स होते हैं। लाइक हमारे अगर हमने टेंसेस की बात करें तो हमने सेंटेंस बनाने होते हैं, तो हमारे पास डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर के जिनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, हमारे पास रूल्स होते हैं और उन रूल्स को हम यूज करते हैं। वो जो रूल्स हैं, वो जो एग्जैक्ट सिस्टम है, वो हमारा लॉ है। जो नेक्स्ट वन है पैरोल। पैरोल जो है वो हमारी एक्चुअल स्पीच है। हम उन रूल्स को यूज करते हैं, हम अपनी एक्चुअल स्पीच में उससे हम स्पीच प्रोड्यूस करते हैं, वो हमारा पैरोल है। एंड दिस इज द फर्स्ट जो है पार्ट इसका यूरोपियन स्ट्रक्चरलिज्म, एंड द नेक्स्ट वन इज नॉर्थ अमेरिकन स्ट्रक्चरलिज्म। दिस विल कवर Almas. Almas, if you present, please cover this topic. Are you listening me, please? Yes, Marma. ओके सर। सर अलमास नहीं है, उससे नेक्स्ट प्रेजेंट आ गई है सर वो। Okay. Assalamu alaikum. My name is Almas and today I am going to discuss North American structuralism. The main figure of this movement was Leonard Bloomfield. It centers on what people actually say. Language study always must be centered upon the spoken language. Definitions should be based on the form of language. History of a form doesn't explain its actual meaning. Reason behind the emergence of this movement was lack of methodology to describe language. Here are the main tenets of this movement. First, linguistics is the descriptive science. The primary form of language is the spoken one. Every language is a system on its own right. Language is a system in which smaller units arrange systematically to form larger ones. Meaning should not be the part of linguistic analysis. The procedures to determine the units in language should be objective and rigorous. Language is observable speech, not knowledge. Now I am going to discuss these in detail. First, linguistics is a descriptive science. It describes how language is actually used, how people really talk and write. It describes what people say, not what people should say. Next is the primary form of language is the spoken one. From this, it is clear that speech is primary and writing is secondary. There are many societies in the world with languages, but without any writing system. So we can say that not every language has a written form. Everybody learns an oral language. The spoken form comes first, then the written one. Next is every language is a system on its own right. Language should be described in its own term, not in the terms of other language. We can say that language uses symbols to convey meanings. Like these symbols can be words, body language, sounds, images, etc. And these symbols have different meanings in different contexts. Next is
Language is a system in which smaller units arrange systematically to form larger ones. We can say that language has a structure, therefore linguists should describe and classify pattern and the structure in which smaller units arranged to form bigger ones, like letters to words and words to sentences. Next is meaning should not be part of linguistic analysis. We can say that meanings are contextual and they depend upon the perception of readers or listeners. When we analyze something linguistically, we are concerned with the analysis of language itself and we are not concerned with meanings. Next is the procedures to determine the units in language should be objective and rigorous. It is based on the scientific method and says that language needs to be analyzed in terms of their form, morphological characteristics, and distribution and positions of the word in a sentence. We should try to define language in its structural perspective, like subject, object, etc. Here is the example of noun. Noun is basically defined as the word that refers to person, animals, or things. This is definition based on meaning, but in a sentence, a noun can be a subject, object, or complement. Next is the procedures to determine the units in language should be objective. Next is the language is observable speech, not knowledge. Here, North American linguists rejected Locke and Perrow. And they say speech is observable and can be analyzed, and the mental aspects of language were considered unscientific. That's all by my side. Thank you very much. Is there more presenter? ग्रुप ए कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट शायद जो है वो ग्रुप बी की है. ग्रुप बी की प्रेजेंटेशन है. ओके, लेट मी talk about something about post-colonial literature. The rest of the post-colonial theory we have been discussing yesterday, and we'll have more presentations in the next class, inshallah, right, in the next week. So second group will start in the next week. Okay, sir. Okay, let me share my screen with you people. Thank you. I have already shared material about post-colonialism and some of the important terms used in post-colonial theory. Some recorded lectures are also there. I mean, the PDFs of those recorded lectures are there. Kindly go through those 2 lectures and try to understand the terms used there, the concept of post-coloniality, concept of colonialism, imperialism, and mimicry, hybridity, double consciousness, and many more, right? And if you find it, I mean, comprehensible for you, you can understand it easily, it's okay.
if you find any problem and anything that is problematic for you, do ask me to explain whatever you find difficult, right? We may discuss those points, those questions of yours through voice messages or WhatsApp call messages, or we can discuss those issues in the next class, inshallah. So let me brief you people what is post-colonial literature. Is my screen visible to you all? Yes, sir. Right. Yes, sir. So in a broad sense, post-colonial literature is writing which has been affected by the imperial process from the moment of colonization to the present day. Ashcroft, in his article, defines post-colonial literature. वो राइटिंग जो अफेक्टेड हो इंपीरियल प्रोसेस से, उस लम्हे से, जिस लम्हे जो है वो कोलोनाइजेशन का आगाज हुआ, उस वक्त से लेके आज तक, उस मेंटेलिटी की वजह से, उस इंपीरियलिस्टिक थॉट्स की वजह से, उस प्रोसेस की वजह से, जिसके ऊपर उसकी छाप हो. So in India's case, this include novels, poetry and drama which were written both during and after the British Raj or reign, which came to a formal conclusion with Indian independence in August 1947. मिसाल के तौर पर जो है वो समझाने की कोशिश की गई है कि इंडिया के केस में जो है वो, अगर आप नॉवल लिखे गए, पोइट्री लिखी गई, ड्रामा लिखा गया, इससे कोलोनाइजेशन के दौर में बरतानवी राज जो है वो, बरतानवी जो जब यहाँ पे रूल था उस वक्त, उसके दौरान और उसके जो है वो बाद भी, जब ये जो है वो 1947 अगस्त 1947 में जो है वो दोनों जो है वो रियासतें, पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो है वो एज सॉवरेन स्टेट्स जो है वो आज़ाद हुई. एक सेकेंड वेट करिएगा प्लीज. Sorry for interruption. Although writing from India and other formerly colonized countries such as Nigeria, Jamaica, Pakistan and Singapore has distinctive features, post-colonial literature shares some significant concerns and characteristics. तो कॉलोनियल लिटरेचर जो है, जहाँ जहाँ पर भी नौआबादियात रहीं यूनाइटेड किंगडम की, कनाडा है, आयरलैंड है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, सिंगापुर है, ठीक है, और बेशुमार जगहों पे, तो उनके अपने कल्चर के हिसाब से, अपने लोकल जो उनके राइटिंग कन्वेंशंस हैं, दे आर देयर. लेकिन जो पोस्ट कॉलोनियलिटी के कंसर्न्स हैं, दे आर कॉमन एंड दे आर शेयर्ड इन ऑल लिटरेचर फ्रॉम all the parts of the world wherever colonization was in vogue, right? There are those shared and common concerns are as follows. First one is reclaiming spaces and places. First concern, reclaiming spaces and places. Colonialism was above all a means of claiming and exploiting
foreign lands, resources, and people. Enslavement, indentured labor, and migration forced many indigenous populations to move from the places that they considered home. तो colonialism जो थी वो सबसे बढ़कर एक ऐसा जरिया था जिसके जरिए जो colonizers थे वो जहां पर भी कहीं गए उन्होंने वहां के लोगों को, रिसोर्सेज को वहां के और वहां की खास तौर पर जमीनों को जो है वो एक्सप्लॉइट किया, उनको अपनी जाती जागीर समझा, गुलामी के जरिए या फिर जबरदस्ती की जो लेबर ली गई उनसे या फिर उनको माइग्रेट करवाया गया उनकी उन जगहों से, मकामी जगहों से जिनको वो अपना घर कहते थे, ठीक है। तो ये वो कॉलोनियलिज्म के थ्रू किया उन्होंने। जब पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर लिखा गया तो ये बेसिकली अटेम्प्ट करता है इस बात को कि काउंटरएक्ट करे उस एलियनेशन को जो उनके इर्द गिर्द में जो है वो की गई या अपने मकामी आबादियों से उनको निकाला गया या उनको फोर्स किया गया वहां से, फोर्स माइग्रेशन के थ्रू या एम्प्लॉयमेंट के थ्रू या इंस्लेवमेंट के थ्रू, तो वो इसको रिस्टोर करना चाहते हैं, रिक्लेम करते हैं। A connection between indigenous people and places through description, narration and dramatization. तो वो नरेशन के थ्रू, डिस्क्रिप्शन के थ्रू या ड्रामेटाइजेशन के थ्रू उन जगहों को, उन प्लेसेस को, उन स्पेसेस को जो है वो अपने होम्स डिक्लेयर करते हैं और उसकी रेस्टोरेशन वैसी चाहते हैं जैसे वो कोलोनाइजेशन से पहले थी, एक्सप्लॉयटेशन से पहले थी। एक तो ये मेजर कंसर्न जो है वो आपको तमाम ही जगहों के जो है वो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के अंदर नजर आएगा कि जब भी वो लोग पोस्ट कॉलोनियल एरा के अंदर अपना लिटरेचर लिखेंगे, नॉवल, ड्रामा, पोइट्री, तो वो इन जगहों को बहुत ज़्यादा जो है वो ग्लोरीफाई करते हैं। सेकंड है asserting cultural integrity. During colonization, the indigenous cultures of those countries subjected to foreign rule were often sidelined. कि जहाँ पर भी जो है वो colonizer जाते थे वो वहाँ के कल्चर को जो है वो पलट पलट देते थे और अपना कल्चर जो है उसको जो है वो लागू कर देते थे। उनको या तो साइडलाइन कर देते या सप्रेस कर देते और या फिर उसको जो है वो डेनिग्रेट करते अपने सोशल कल्चर जो प्रेफरेंसेस हैं उनकी या कन्वेंशंस जो होते उनके कोलोनाइजर्स के, तो उसके मुताबिक उसको ढाल देते कि उनका कल्चर जो है वो ज़्यादा प्रेवलेंट होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और दूसरों का जो है वो सप्रेस हो जाता है। सो इन रिस्पॉन्स much post-colonial literature seeks to assert the richness and validity of indigenous cultures in an effort to restore pride in practices and traditions that were systematically degraded under colonization. कल मैंने बात की थी आपको हार्ट ऑफ डार्कनेस और फिर उसके जो है वो काउंटर जो है वो डिस्कोर्स के तौर पर जो है वो चिनुआ अचेबी अफ्रीकन राइटर हैं नाइजीरिया के, उन्होंने थिंग्स फॉल अपार्ट एक नॉवेल लिखा और उसमें उन्होंने अफ्रीकन कल्चर की बात की, अफ्रीकन ट्रेडिशंस की बात की, वैल्यूज़ की बात की, फैमिली स्ट्रक्चर की बात की, अपने रिचुअल्स की बात की। तो बेसिकली जो है वो अपने उस कल्चर की रेस्टोरेशन वो चाहते हैं कि उनका कल्चर जो है वो उसको जो है वो रिस्टोर करना चाहते हैं, उसको ग्लोरीफाई करते हैं और जो डिफॉर्मिटी उनके कल्चर में जिस तरह से डिफॉर्म करके उसको तोड़ मरोड़ कर जो है कोलोनाइजर्स ने पेश किया दुनिया के सामने, ठीक है। जैसे अब मुस्लिम हैं तो दे हैव बीन प्रेजेंटेड एज टेररिस्ट्स, दे हैव बीन प्रेजेंटेड एज टेररिस्ट। तो हम मुस्लिम क्या करते हैं कि अपना सही तशख़्ख़ुस जो है उसको रिक्लेम करते हैं। हमारी वो जो रिवायात हैं, जैसे हमारे जहाद को जो है उन्होंने टेररिस्ट कह दिया, हमारी अपने जो है वो रिलीजन के साथ जो वाबस्तगी है उसको उन्होंने फंडामेंटलिज्म कह दिया, ठीक है, या एक्सट्रीमिज्म का नाम दे दिया या जो है वो मिलिटिज्म का नाम दे दिया। तो मतलब दैट इज एक्चुअली द पिलर्स ऑफ द रिलीजन इस्लाम एंड एवरी कल्चर हैज इट्स ओन मैकेनिज्म टू सिक्योर itself। तो हम लोग भी जो है ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें जो हैं
उस वक्त जो है इन पर अमल पैरा होते हैं जब उनकी ज़रूरत होती है, जब हमें अपनी जो है वो एक इंटेग्रिटी को, हमारी सॉवरेनिटी को, हमारी फ्रीडम को जो है वो इस बात किसी से खतरा लाक होता है। सो वी ऑल्सो यूटिलाइज ऑल मीन्स कि हम लोग उसको काउंटर करें। हमारा मजहब जो है, हमारा दीन जो है वो एक अमन का दीन है, ठीक है, जो ना सिर्फ इंसानों बल्कि अल्लाह ताला की तमाम ही मखलूकात के लिए जो है वो जो है एक बाइस रहमत है। वो लोग जो उसके पैरोकार हैं वो कैसे जो है वो टेररिस्ट हो सकते हैं, तो इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि किसी की फीलिंग्स इंजर्ड ना हो, ठीक है। बट जिस तरह से तोड़ मरोड़ के हमें पेश किया जाता है तो हमें पूरा हक है कि हम उनको काउंटर करें। सो हम ऐसे नॉवेल्स लिखते हैं, ऐसी जो है वो मूवीज बनाते हैं, ऐसे ड्रामे बनाते हैं ताकि उनका जो एक क्लेम है हमारे बारे में उसको काउंटर किया जाए और हम लोग अपने कल्चर को, अपनी आइडेंटिटी को, अपने तशख़्ख़ुस को जो है वो उजागर करें, दुनिया को दिखाएं कि वो नहीं है फेस हमारा जो है जिसको जो है वो दूसरी जो ताकतें हैं या हमारे जो एक तरह से जो एनिमी स्टेट्स हैं वो हमें प्रेजेंट करते हैं, बल्कि हम वो हैं जो हम प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग अगर फॉर एग्जांपल जैसे हॉलीवुड है, बॉलीवुड है, तो उनकी मूवीज के अंदर जो है वो हमें टेररिस्ट दिखाया जाता है या हम लोगों को आतंकवादी दिखाया जाता है या फिर जो है वो चोर, डाकू, राहजन और जो है वो साजिशी किस्म के लोग, बैकवर्ड बारबेरियंस जो है वो दिखाया जाता है। तो दैट इज नॉट एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मुस्लिम कैरेक्टर्स, राइट। सो हम लोग उनके थ्रू जो है वो अपने कल्चर को रिक्लेम करते हैं, उसकी रिचनेस को, ठीक है, ट्रेडिशंस को, हमारी वैल्यूज को, और विद प्राइड जो है वो रिस्टोर करते हैं, ठीक है, बजाय जिसको जो है बड़े सिस्टमैटिकली, बड़े तरीके के साथ जो है वो कॉलोनियल पावर्स ने जो है वो डिग्रेड किया। थर्ड, रिविजिटिंग हिस्ट्री है। कॉलोनाइजर्स ऑफ्टन डिपिक्टेड देयर कॉलोनियल सब्जेक्ट्स एज एग्जिस्टिंग आउटसाइड ऑफ हिस्ट्री। उन्होंने हमेशा जो है इस तरह से प्रेजेंट किया लोगों को कि जैसे उनकी कोई तारीख है ही नहीं, सिरे से आउटसाइड हिस्ट्री है। in unchanging timeless societies unable to progress or develop without their intervention and assistance। जैसे मैं कल बात कर रहा था वो जो है वो व्हाइट मैन्स बर्डन की कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सब लोगों को जो है वो एजुकेट करें खुदा की धरती पे और इनको जो है वो इनकी एवोल्यूशन करें, इनको एजुकेट करें, इनको सिविलाइज करें। तो उन्होंने ये अपना एक जो है वो इंपीरियलिस्टिक सोसाइटी जो है फिलॉसफी जो है उसके थ्रू वो आगे नेविगेट करते हैं। तो होता क्या है कि बेसिकली जो है लोगों को जो है वो बिल्कुल ये समझ लेते हैं कि वो अनचेंजिंग है, टाइमलेस सोसाइटीज़ हैं और जिसमें जो है वो प्रोग्रेस नहीं पॉसिबल हो सकती, ना वो उनकी मुदाखलत और मदद के बगैर जो है वो जो है प्रोग्रेस कर सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं और उनका कोई एवोल्यूशन जो है वो हो सकता है। तो लिहाजा उनको इंटरवेन करना पड़ेगा, ठीक है। और वो थ्रू, अब नियो कॉलोनियलिज्म का दौर है तो अब उनको हमारे मुल्क में आना नहीं पड़ता, बल्कि वो अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के थ्रू, मुख्तलिफ जो है वो इंस्टीट्यूशंस के थ्रू और मुख्तलिफ जो है वो स्ट्रेटजीज के थ्रू जो है वो इंटरफेयर करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे इस तरह से इंटरनेशनल जो है वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो जिनके थ्रू जो है वो इस काम को सरअंजाम देते हैं कि वो अपने मुल्क में बैठ के जो है वो दूसरे ममालिक को जो है जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, तो उनको जो है वो कंट्रोल करते हैं। सो इन दिस वे दे जस्टिफाइड देयर एक्शंस। इस तरह से इस बिना पर जो है वो समझते हैं कि हमारी इंटरवेंशन जरूरी है, तो अपने कॉलोनाइजेशन को जस्टिफाई करते हैं और जो कुछ भी वो करते हैं कॉलोनाइजेशन के थ्रू, इंक्लूडिंग वायलेंस अगेंस्ट दोज हु रेजिस्टेड कॉलोनियल रूल। तो उनके खिलाफ जो वो वायलेंस, तशद्दुद जो है, तशद्दुद अमेज रवैया जो है उनका, उन लोगों के खिलाफ जो कॉलोनियल रूल को नहीं मानते, उनका कत्लेआम भी जो है उसको जस्टिफाई करते हैं। सो रिविजिटिंग हिस्ट्री टू टेल थिंग्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दोज कॉलोनाइज्ड इज दस अ मेजर प्रीऑक्यूपेशन ऑफ पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग। तो पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग के अंदर जो है ये एक बड़ा ही मेजर जो है वो कंसर्न है पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग का कि हम लोग अपनी हिस्ट्री को रिविजिट करते हैं, हम हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स हैं वो लोगों के सामने रखते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग बहुत सारी मूवीज, बहुत सारे ड्रामे जो है वो हम लोग देखते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जो है बनाए जाते हैं। हम लोग अपने
हीरोज को जो है वो प्रोजेक्ट करते हैं, इंडिया वाले अपने जो है वो लोगों को जो है वो प्रोजेक्ट करते हैं जिन्होंने जो है वो जंग आज़ादी में जो है हिस्सा लिया, और हमारे लिए वो हीरोज हैं, लेकिन जो है वो अंग्रेज बहादुर के लिए जो है वो दुश्मनों का जो है वो दर्जा रखते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है वो इसकी वजह ये है कि हमें अपनी हिस्ट्री को, हमें अपने तशख्खुस को, हमें अपने कल्चर को जो है वो रिक्लेम करना होता है, रिस्टोर करना होता है, दुनिया को अपना असल जो है वो दिखाना है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इसके साथ जो है वो मौजूद हैं, जैसे रेजिस्टेंट डिस्क्रिप्शंस आएंगी कि पोस्ट कॉलोनियल राइटर जो है वो यूज़ करते हैं डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस ऑफ इंडिजिनस पीपल, अपने मुतल्लिका लोगों के बारे में। ठीक है, मसलन हमें जो हमारी स्टीरियोटाइपिफिकेशन है, मतलब हम लोग दूसरे कल्चर में देखेंगे हमें जो है वो बड़ा बियर्डेड और जो है ना भी कोई वेपन उठाए हुए और या फिर जो है वो मतलब कुछ जुल्म करते हुए बैकवर्ड किस्म के और जो है वो मौलवी टाइप के जो है वो लोग दिखाया जाता है मुस्लिम्स को। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है, तमाम मुस्लिम कंट्रीज के अंदर जो है मतलब मुख्तलिफ तरह के लोग रहते हैं, जिनमें से बहुत सारे बियर्डेड हैं, बहुत सारे बियर्डेड नहीं भी हैं, और उसमें जो है वो बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो है वो साइंटिस्ट हैं। ठीक है, बड़े ही एजुकेटेड डेमोक्रेटिक जो है वो हैं, तो उस फेस को इग्नोर करके हमें हमारे फेस को, हमारी आइडेंटिटी को डिफॉर्म करके जो वो लोगों के सामने वो प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारी प्रैक्टिसेस को, ये इन सारी चीज़ों को दिखाते हैं, कल्चर को भी और हिस्ट्री को भी। तो बेसिकली जो पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग है वो इन डिस्क्रिप्शंस के थ्रू जो हमारे लोगों की है, हमारी जगहों की है, तो वो बेसिकली वो एक रेजिस्टेंस है जो काउंटर करती है उस स्टीरियोटाइप को, उस इनएक्यूरेसीज को और जनरलाइजेशन को जो कोलोनाइजर जिसको जो है वो सर्कुलेट करते हैं एजुकेशन के अंदर, लेजिस्लेशन के अंदर, पॉलिटिकल और जो सोशल टेक्स्ट और सेटिंग्स हैं उसके अंदर। ठीक है, अपनी मूवीज के अंदर भी, अपने ड्रामों के अंदर भी, और हमें जब भी कहीं भी दिखाएंगे लोगों को ऐसे दिखाएंगे कि मुस्लिम जो है वो ऐसे होते हैं। इसी तरह से हम लोग अगर अपने हमसाय मुल्क के जो है वो मूवीज और उनके ड्रामे और उनकी इन सारी चीज़ों को दिखाएंगे तो वो भी हमें जो है वो इसी तरह से डेरोगेटरी जो है वो अंदाज में पेश करते हैं। तो ये पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के अंदर जो है वो ये रेजिस्टेंस जो है वो नजर आती है। अप्रोप्रिएटिंग ऑफ द कॉलोनाइजर्स लैंग्वेज, कल भी हम लोगों ने अप्रोप्रिएशन और एप्रोगेशन की बात की, तो उसमें मैंने बताया कि हम लोग कॉलोनाइजर की लैंग्वेज के अंदर ही उसको अडॉप्ट करकर अपने मकसद के तहत को जो है वो अचीव करने के लिए उनकी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं, ताकि दुनिया तक जो है उन्हीं की लैंग्वेज में उसको काउंटर जो है वो डिस्कोर्स के अंदर जो है वो हम लोग जवाब दे सकें। So although many colonized countries are home to multiple indigenous languages, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, हमारी मकामी भी हैं, कौमी ज़ुबान भी है, सारा कुछ है, और ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ पे मकामी ज़ुबान ना हो या उनकी एक से ज़्यादा ज़ुबानें ना हो, इलाकाई ज़ुबानें भी हैं। तो इन इंडिया फॉर एग्जांपल मोर देन 12 लैंग्वेजेस एग्जिस्ट अलोंगसाइड इंग्लिश एंड मेनी पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स चूज टू राइट इन द कॉलोनाइजर्स टंग। तो वो ज़्यादातर जो राइटर्स हैं तो वो उन्हीं लोगों की जो है वो अपने कॉलोनाइजर की लैंग्वेज के अंदर जो है वो लिखते हैं, जैसे मोहसिन हामिद है, जैसे शमसी सिस्टर्स हैं, इसी तरह से अंदरती राव हैं, इसी तरह से नदीम असलम हैं, मोहसिन नकवी हैं, जो इंग्लिश के अंदर जो है वो लिखते हैं, पाकिस्तान से भी, इंडिया के अंदर से भी, तो वो उनकी लैंग्वेज को अप्रोप्रिएट करते हैं, अप्रोप्रिएशन है। However, other authors such as Andruti Rai deliberately play with English, remolding it to reflect the rhythms and syntax of indigenous language. तो वो उस लैंग्वेज को के साथ प्ले करते हैं और उसमें जो हमारे लोकल जो रिदम है, जो सिंटैक्स है, नाउन्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, वर्ब्स हैं, वो उनको भी जो है वो यूज करते हैं ताकि हमारी अपनी लैंग्वेज का भी जो रंग है वो नजर आए। तो हमारे अपने मकामी जैसे फूड आइटम्स हैं, हमारे पहनावे हैं, हमारी रिचुअल्स हैं, तो उनके नाम जो है वो एज इट इज उस लैंग्वेज का हिस्सा बनाते हैं। एंड इन्वेंटिंग न्यू वर्ड्स एंड स्टाइल्स टू डेमोन्स्ट्रेट मास्टरी ऑफ अ लैंग्वेज दैट वाज इन अ सेंस फोर्स्ड अपॉन देम। तो वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि उनके ऊपर जो कभी एक लैंग्वेज मुसल्लत कर दी गई थी, नाउ दे आर सेल्फ सफिशिएंट अबाउट द यूज ऑफ दैट लैंग्वेज, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अब हम लोग जो है वो मुख्तलिफ जो है वो इंस्टीट्यूशन में देखते हैं, हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम जो है वो इदारे भी हैं। तो ये एक किस्म का जो है वो क्लेम है
that we can counter the impact of English language. Now we have Pakistani English as well. They have Indian language English as well. ठीक है, और इसी तरह से कैनेडियन इंग्लिश है, ठीक है, न्यूजीलैंड की इंग्लिश है, जहाँ जहाँ पे भी उनकी तो दे हैव डेवलप्ड देयर ओन डिस्कोर्स, दे हैव डेवलप्ड देयर appropriated the colonizers language. Reworking colonial art forms. जो आर्ट फॉर्म्स हैं कॉलोनियल दौर की, उनके ऊपर रीवर्क कर रहे हैं उसको. सिमिलरली ऑथर्स सच एज अंधरुति राय, ठीक है, इस इंडियन राइटर एक्चुअली एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट भी है, और जो मतलब इनजस्टिस इनइक्वालिटी वहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ जात पात के लोगों के साथ होता है, शी ट्राइज टू रिएक्ट टू इट, शी रिस्पॉन्ड्स टू इट मोस्ट ऑफ द टाइम. इंटरव्यूज भी आ रहे होते हैं उसके मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर भी, और टेलीविजन के ऊपर भी, चैनल्स भी जो है वो उसको मतलब प्रोजेक्ट करते हैं, उसकी राय को अहमियत दी जाती है. इस तरह और बहुत सारे जो राइटर और सोशल एक्टिविस्ट हैं इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, जो उन इनइक्वालिटीज़ के ऊपर, जो सोशल इनजस्टिस है उसके ऊपर, या जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके ऊपर, तो और बहुत सारे जो हमारे लोकल इश्यूज हैं उनके ऊपर भी जो है वो लोग डिस्कस करते हैं, उनको बात करते हैं, अपना रिएक्शन शो करते हैं. नॉवल भी है उनके, इसी तरह से जैसे अंधरुति राव का एक नॉवल जो है वो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है. इसी तरह से बंगाली राइटर्स हैं, उनका भी इस तरह से नॉवल है, द नेम सेक है, ठीक है, मतलब काफ़ी सारे हैं. पाकिस्तान की तरफ से मोहसिन हामिद का द रिलेक्टेंट फंडामेंटलिज्म है. इसी तरह से मैप फॉर लॉस्ट लवर्स है, द होम बॉय है मोहसिन नकवी साहब का. द पीपल राइट अबाउट दीज थिंग्स. So authors such as Andrati Rai rework European art forms like the novel to reflect indigenous modes of invention and creation. So they reshape imported colonial art forms to incorporate the style, structure and themes of indigenous modes of creative expression such as oral poetry and dramatic performances. तो उनकी आर्ट फॉर्म्स को ही जो है वो रीवर्क करते हैं, ठीक है, और उसको अपनी जो इंडिजिनस जो है, जो लोकल एलिमेंट्स हैं, स्ट्रक्चर के हवाले से, स्टाइल के हवाले से, थीम्स के हवाले से, सब्जेक्ट्स के हवाले से, जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन के अंदर आता है, तो उसको, जैसे ओरल पोएट्री, ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस हैं, तो वो उसको अपने अंदाज में पेश करते हैं. लैंग्वेज उन्हीं की होती है, लेकिन और आर्ट फॉर्म भी उन्हीं की है, लेकिन हम लोग उसको अपने अंदाज में जो है वो प्रेजेंट करते हैं. हमारा स्टाइल डिफरेंट होगा, हमारे एक्सप्रेशन डिफरेंट हो सकता है, स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो सकती हैं, थीम्स और सब्जेक्ट जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं. बट actually we are reworking the art forms of the colonial masters. तो ये बेसिकली जो है इस तरह से जो लिटरेचर होगा, that is post colonial literature. क्लियर है जी? जी सर. राइट, चलिए नेक्स्ट टाइम जब हमारी क्लास होती है तो हम इंशाल्लाह जो है वो बात करेंगे. फिर हमारी प्रेजेंटेशन भी चलेंगी. कोई एक आध जो है वो थोड़ा सा मैं पोस्टोनियल को वाइंड अप करके हम लोग फेमिनिस्ट थ्योरी को जो है वो उसके ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह. ओके सर. थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर योर काइंड पेशेंस. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज सर. अल्लाह हाफिज सर.